Hello students, this video it is related with standard 7, subject is maths and chapter name is 9 rational numbers, and as you know that I am explaining exercise 9.1. In this video I am going to explain question number 7. Rewrite the following rational numbers in the simplest form. Okay student, we have to write this all rational numbers into simplest form. Okay, now what is simplest form? Simplest form means if for example first sum is given, okay, अगर ये दोनों किसी टेबल से कट रहा है तो आपको कट करके उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू में कन्वर्ट करना है, एंड दैट इज योर simplest form. Let us see one by one. Okay, after looking some one or two sums, then we can get idea about simplest form. Okay student, let us see now. -8/6, 8 and 6 both numbers are coming in 2's table. दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 से कटेगा 2 4 8, 2 3 6, so -4/3 और 4 and 3. अब ये दोनों किसी भी एक टेबल में नहीं आते, दैट मीन्स दिस इज आवर फाइनल आंसर एंड दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस नंबर. सम नंबर सेकंड 25/45. Students, unit value 5 in numerator, denominator also unit value 5. Both numbers are coming in the 5th table, so 5 5s are 25, 5 9s are 20, 5 9s are 45, so 5/9. now अब ये जो नंबर है वो किसी भी टेबल में आता नहीं है, so that means अब ये आगे कटेंगे नहीं, so ये हमारा simplest form हुआ, lowest form, and this is our answer and this is the simplest form of this number. Sum number 3, -44/72. now for unit value 4 and 2, that means both values are coming in the 2's table. दोनों 2 के टेबल में आते हैं, कट करते हैं. 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 6s are 12, 22/36. अगेन दोनों 2 के टेबल में आ रहे हैं. 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 11/18. now and negative sign. This is our final answer. This is the simplest form of this number. now last one is -8/10. okay student, both number are coming in the 2's table, so and you can see both number can cut from 2. how? 2 4s are 8, 2 5s are 10, -4/5. अब ये जो नंबर है वो किसी भी नंबर से कटेगा नहीं, so this is our answer and this is the simplest form of this number. got it? पता चला? तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट सम में. Students, question number 8 and question is fill in the boxes with the correct symbol out of this symbol. Here is we have to find out from this rational number and put these 3 symbols, any one symbol from this symbol in the boxes. So student, we cannot put this symbol directly. First we have to find out that which number is greater and which number is smaller. Then we can put one of the symbol from this in the boxes, in this box. Okay,
Now student, here in first sum, here it is denominator is 7 and here denominator is 3. Both values of denominators are different. Okay. If we make the denominator same, then we can decide which number should be greater and which number should be smaller. Okay. Then and then we can identify which number will be greater and which number will be smaller. Let us see. Now, I have to take first LCM 7 and 3. Okay. 7, 3 LCM. 7 1 7. 3 1 3. 7 3 का multiply 21. LCM is 21. Okay. So, here I have to make 21. By which number I should multiply in the 7 so I can get 21? 3. Okay. If I multiply by 3 in denominator, so I have to multiply in numerator also. Okay. Now here I have to make 21. So by which number I should multiply here? So my denominator can become. So my denominator become 21. If I multiply by 7, then my denominator become 21. Okay. So multiply by 7 denominator by 7 and numerator also by 7. Now 3 5 are 15, 7 3 are 21, 7 2 are 14, 7 3 are 21. Now my both denominators are same, and now I can identify. Now I can be able to find out which number is greater and which numbers are smaller. Both denominators are same, and this value is negative and this value is positive. And student, as I told you, positive numbers are always greater than negative values. Okay, so this number become greater. Got it? Okay. Let us see next one. Yes, so next one is minus 4 upon 5 minus 5 upon 7. 5, both numbers are negative, but still we are not able to say which number should be greater. Okay. To find out that, we have to make denominator same. Okay. 5 and 7. To make them equal, denominators equal, we have to take LCM. What is the LCM of 5 and 7? I am taking here. I am doing here. 5 1 is 5, 7 remain. 7 1 is 7. 5 7 is 35. When I multiply 5 7, I get 35. That means my denominator should be 35. For making 35 denominator, I have to multiply here by 7, and then my 7 5s are 35. Then and then my denominator become 35. For making 35 here, I have to multiply 5 with 7. 5 7s are 35. Got it? Okay. Now make 35. 7 5s are 35. And student, if I multiply denominator by 7, so I should multiply numerator also with 7. Numerator को भी 7 से multiply करना पड़ेगा. Here I am multiplying 7 by 5. So I should multiply numerator also with 5. अगर डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. बोथ साइड नंबर शुड बी सेम. दोनों ऊपर नीचे नंबर सेम होने चाहिए. 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 5 5 जा 25, 7 5 जा 35. Denominators are same student. Now we can identify which number is
smaller. And student, both numbers are negative. Now student, as I told you, नेगेटिव में जितनी वैल्यू बड़ी होती है उतनी वैल्यू छोटी होती है, और नेगेटिव में जितनी वैल्यू छोटी होती है उतनी बड़ी वो बड़ी होती है. सो नेगेटिव में वैल्यू कौन सी छोटी है? ये वाली 25, तो ये हमारी बिगर हो जाएगी. और ये वैल्यू कौन सी वैल्यू है? ये वैल्यू है ये वाली. सो दिस बिकम माय ग्रेटर. गॉट इट स्टूडेंट? पता चला? सो लेट अस सी नेक्स्ट सम. Now students, question number 8, fill in the boxes with the correct symbol out. सिंबल पुट करना है. सम नंबर 3 इज -7/8 14/-16. -7/8. स्टूडेंट, ये दोनों वैल्यू अब आगे कटेगी नहीं. ओके, बट 14/16 तो कटेगी. कैसे? 2 7 जा, दोनों नंबर्स 2 के टेबल में आ रहे हैं ना, आ रहे हैं. सो ये कैसे कटेंगे 2 के टेबल से? 2 7 जा 14, 2 8 जा 16. ओके ओके. एंड नेगेटिव साइन. नाउ स्टूडेंट, हियर इज both rational numbers are same, but only difference is for negative sign. Here is negative sign in numerator and here is negative sign in denominator. But student, negative sign numerator में हो या denominator में हो, वैल्यू सेम होती है. That means ये these both numbers are equal. So these numbers are equal. Let us see sum number 4. First sum is -8/5. Student, this number cannot be cut by any number because it is already in simplest form. -7/4. Okay student. Now student, 5 and 4, I have to take LCM, and the LCM of 5 4 is 5 1 ja 5, 4 1 जा 4, 5 4 जा 20. एलसीएम 20 मीन्स दोनों साइड डिनोमिनेटर को 20 होना पड़ेगा. ओके, फॉर दैट आई हैव टू मेक बोथ साइड डिनोमिनेटर 20. फॉर दैट, for making here denominator 20, I have to multiply by 4 numerator and denominator both sides. Same here, for making denominator 20, I have to multiply by 5 number in denominator and numerator both sides. Okay, 4 8 जा 32, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, 5 4 जा 20. Now student, see carefully. Here I have made both side denominator 20. जब भी डिनोमिनेटर इक्वल हो जाए तो हमें खाली न्यूमरेटर की वैल्यू को चेक करके हम ये बता सकते हैं कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी वैल्यू छोटी है. बोथ आर नेगेटिव, बोथ आर इन नेगेटिव, दोनों में नेगेटिव साइन है. एज आई टोल्ड यू, नेगेटिव में जो वैल्यू बड़ी होती है वो छोटी होती है. ओके, छोटी कौन सी है? 32. सो दिस इज माय बिगेस्ट नंबर. और ये वैल्यू किसकी है? ये वाले की. तो ये मेरा ग्रेटर नंबर है. ओके स्टूडेंट, गॉट इट. लेट अस सी नेक्स्ट सम. नाउ स्टूडेंट्स, सम नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 8. सम इज
here is 3 and here is 4. Both rational numbers are in negative, but denominators are different. Okay, for making equal I have to take LCM. Okay, what is the LCM? 3 1 ja 3, 4 remains same, 4 1 ja 4. Multiply of these two number, 3 4 जा 12. मतलब कि 12 नंबर जो है वो दोनों डिनोमिनेटर में होना चाहिए, दोनों में होने चाहिए, और दोनों में होने के लिए I have to multiply by some number in both denominator and numerator. तो 12 को लाने के लिए मुझे यहाँ पे 12 लाना है बोथ साइड डिनोमिनेटर में, तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं? और 12 के लिए क्या करूं? I have to multiply by 4 both side. दोनों साइड मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से. Now here for making denominator 12 I have to multiply by 3 numerator and denominator both side. Okay, 4 1 ja 4, 4 3 ja -12, 3 1 ja 3, 3 4 ja 12. Now students, denominators now become equal, and now we can find out which number smaller and which number is bigger. Now student, negative sign, both are negative. 12 denominators are same. Now as I told you, in negative sign छोटी वैल्यू बड़ी होती है और बड़ी वैल्यू छोटी होती है. Denominators are same. Which number is smaller? Which number is smaller? -3, -4 से -3 छोटा है, ये छोटा है तो मतलब कि ये बड़ा होगा. नेगेटिव साइन उल्टा होता है, छोटी वाली वैल्यू बड़ी होती है. दैट मीन्स दिस इज माय ग्रेटर, तो दिस इज माय ग्रेटर. ये वैल्यू किसकी है? इसकी. अगर ये बड़ा है तो ये वाला भी बड़ा होगा. ये वैल्यू इसी की है तो ये बड़ा हो गया. नाउ स्टूडेंट, लेट अस सी नेक्स्ट सम नंबर 6. 5/12 -5/10. 11. 5/-11 -5/11. Students, both rational numbers are same, but different is only for sign. Here negative sign is present in the denominator, and here negative sign in numerator. एक में डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन है और दूसरे में न्यूमरेटर में नेगेटिव साइन है, बट वैल्यू तो सेम ही होगी. दोनों वैल्यू सेम होती है, मतलब दोनों इक्वल है. लेट अस सी नेक्स्ट सम. Now students, sum number 7 of question number 8. Student, here we do not need any explanation here, because here is value negative and here is 0. We know that 0 is always greater than negative value. 0 जो है हमेशा नेगेटिव वैल्यू से बड़ा होता है. So directly you can write here 0 is greater than this negative rational number. Okay students. Now students, here I am going to explain some motivational line, and this line will be helpful in your life and in your study purpose, in your reading habit. Okay. Now student, मैं आपको ये एक स्टोरी से आपको सुनाना चाहूंगा. ठीक है स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट होते हैं ना जो क्या करते हैं, जिनको कुछ याद नहीं होता, जिनका मैथ्स वीक होता है, जिनका कुछ एक सब्जेक्ट कमजोर होता है, वीक होता है, जिसमें कम मार्क्स आता है, तो मैं उन स्टूडेंट के लिए बताना चाहूंगा. और ये लाइन तो अच्छे बच्चों जो पढ़ने में होशियार है, जिनके अच्छे मार्क्स है, तो उनके लिए भी काम आएगी. ठीक है, इस लाइन को आप अपने जीवन में उतारना तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा. स्टोरी ये है स्टूडेंट, दो पॉट होते हैं. पॉट का मतलब दो मटके होते हैं.
एक मटका होता है फुटा हुआ, एक मटके में होल होता है, छोटा सा होल, ठीक है। और एक मटका पूरा अच्छा वाला होता है, मतलब मस्त, जिसमें से पानी गिरता नहीं है। रोज किसान दोनों मटकों को एक अपने डंडे पे, एक आगे मटका एक पीछे मटका, पानी भरने के लिए दूर चलकर, खेतों में चलकर जाता और पानी भरकर लेकर आता। तो रोज मटका, तो इन दोनों मटके की आंखें होती है और मुंह भी होते हैं, ठीक है, मुंह भी होते हैं, ठीक है। तो फिर क्या होता है, रोज पानी भर के लाता वो किसान फार्मर, और रोज घर तक लाता, और रोज ये मटका इसका खाली हो जाता, बिकॉज देयर इज अ होल इन दिस पॉट। इस पॉट में एक छेद है जहां से पानी सारा बह जाता। घर लाते लाते किसान इसका मटका देखता तो पूरा खाली हो जाता, और ये मटके में पूरा पानी भरा रहता, ठीक है। तो रोज ऐसा किसान पानी भरने जाता और घर आता तो इसका पूरा मटका पानी खाली हो जाता और ये पूरा भरा रहता। तो ये क्या, तो ये हमेशा हंसता रहता, ये हमेशा हंसता रहता। क्यों? क्योंकि ये तो खुश रहता, क्योंकि मैं तो किसान का पूरा पानी वेस्ट भी नहीं करता और घर तक लेकर आता हूँ, उसके घर मैं कितना अच्छा काम करता हूँ। और ये इसको कहता है, ये इसको कहता है कि तुम तो फूटे हुए मटके हो। किसान तुम्हें पानी लेकर आता है इतना धूप में पैदल चल के, और तुम तो घर आते आते सारा पानी तुम्हारा छेद में से, होल में से बह जाता है, चू जाता है। तुम तो किसी के काम के नहीं हो, किसी काम के काबिल नहीं हो। और मैं देखो, मैं पूरा पानी लेकर आता हूँ, घर पे रखता हूँ, वो मेरे पानी से अपनी प्यास बुझाता है, प्यास बुझाता है, उनकी फैमिली को, उनके परिवार को मैं प्यास बुझाता हूँ। सुबह शाम मेरे को पी के वो घर से निकलता है। तो ये रोज महीनों तक इसको बोलता रहा, पर ये सुनता रहा। एक दिन इसके सब्र का घड़ा भर गया, अब इससे रहा नहीं गया, इसके सब्र का पुल टूट गया। एक दिन इसने शाम को खाना खाते समय किसान को पूछ लिया कि मैं तो फूटा हुआ मटका हूँ, मेरे में छेद है, मेरे में होल है, तो तुम मुझे क्यों ले जाते हो, क्यों पानी भर कर लाते हो, जब तुम्हें पता है कि मेरे में से सारा पानी बह जाता है, निकल जाता है, फिर भी तुम मुझे बदल क्यों नहीं देते, दूसरा मटका क्यों नहीं लाते, मुझे क्यों रखा है आपने, क्यों उतना दूर जाके मुझे भर के लाते हो, पानी मेरा घर तक आता है खत्म हो जाता है, क्यों मुझे लेके रखे हुए, मुझे कहीं भेज क्यों नहीं देते। तब किसान कहता है कि तुम्हें तो सिर्फ अपनी गलतियां दिखाई दे रही हैं, तुम्हें अपना सिर्फ नेगेटिव पॉइंट दिखाई दे रहा है, तुम्हारे अंदर होल है, तुम्हें सिर्फ वही दिख रहा है, पर तुम्हारे उस होल से पानी जाता कहाँ है ये तुम्हें नहीं दिख रहा। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कल सुबह जरूर दिखाऊंगा तुम्हारे पानी से मेरी कितनी हेल्प होती है। एक दिन की सुबह किसान इसको लेकर जाता है अपने पास में, खेतों के पास, और वहां पे ले जाके उसे दिखाता है, देखो यहाँ पे जितने भी, मैं इसी खेतों के बीच में से तुम्हें लेकर आता था, और यहीं पे आजू बाजू तुम्हारा पानी गिर जाता था इस छेद होल में से। देखो इस खेत के किनारे किनारे जितने भी अच्छे अच्छे फूल खिले हुए हैं ना, वो तुम्हारे इस पानी के गिरने के कारण ही हुआ है, तुम्हारे इस पानी के बह जाने से हुआ है। मतलब कि तुम्हें अंदर से ऐसा लगता है कि मेरा पानी छेद से गिर जाता है, वेस्ट हो जाता है, और तुम्हें अपना नेगेटिव पॉइंट दिखाई देता है, बट तुम्हारे इसी छेद के पानी गिरने से ये फूल इतने अच्छे से खिल रहे हैं। देखो हरे हरे खेतों में कितने अच्छे अच्छे फूल लहरा रहे हैं, ठंडी पवन आ रही है। सो स्टूडेंट, तब इसको रियलाइज होता है, तब ये हंसने लगता है, अरे रे, मैं तो इतने महीनों से दूसरों की बातों को सुन रहा था, और दूसरों की बातें सुनकर मैं अपने आप की नेगेटिविटी को बढ़ा रहा था, मैं अभी तक अपनी नेगेटिविटी को देख रहा था, अपनी छेद, अपनी होल को देख रहा था जहां से पानी वेस्ट होता है, पर मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि मेरे जो पानी बह रहा है वो किनारे पे लगे हुए फूल को मिल रहा है, मेरे से बहा हुआ पानी किसी को जीवन दे रहा है, कितने लाल पीले हरे रंग के फूल खिले हुए हैं। सो स्टूडेंट, ऐसा आपके साथ भी होता है,
ये जो मटका है वो और कोई नहीं, ये आप हो। कौन हो? आप। हर स्टूडेंट के अंदर कैपेबिलिटी है, क्षमता है, कैपेसिटी, एबिलिटी है अच्छे मार्क्स लाने की, बट वो उनके अंदर का जो एनर्जी है वो छुपा हुआ है, वो एनर्जी को दबा के रखे हुए। बट स्टूडेंट, जिस दिन आप अपने छेद को ना देख करके उस पानी को ध्यान दोगे, जिस दिन छेद को ना देख के उस पानी को ध्यान दोगे कि उस पानी से, आपके पानी से बहुत सारे लोगों का जीवन सुधर रहा है, बहुत सारे लोगों को पानी मिल रहा है, उसी दिन आप अपने आप में एक नया चेंज पाओगे, अपने अंदर एक नया एबिलिटी को, एनर्जी, एंथुजियाज्म को जान पाओगे कि नहीं, मेरे में नेगेटिविटी नहीं है, नेगेटिविटी है पर उसके अलावा भी मेरे में बहुत सारी पॉजिटिविटी है। सो स्टूडेंट, आप इस मटके की तरह दूसरों की बातों को सुनकर अपनी नेगेटिविटी को बढ़ाना मत, जबकि अपने 1% नेगेटिविटी को छोड़ दो, 99% के पॉजिटिविटी को पकड़ लो। आप में 1% की आप में नेगेटिविटी है, पर आपके 99% आपके गुण भी आपके पास है, आपके क्वालिटीज आपके पास है, 99% है। सो स्टूडेंट, आप इस मटके की तरह दूसरों की बातों पे ध्यान मत देना, अपनी पॉजिटिविटी पे ध्यान देना। सो स्टूडेंट, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मेरा एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया, आपके दिल को, आपके मन को छू गया होगा। सो इसी तरह से मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से सम लेकर आता रहूंगा। दिल थाम के बैठिए, मैं आपके लिए ऐसा वीडियो लेकर आता रहूंगा। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।